Jesus says, I have come to seek and save the lost. God says, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh, and that means you. When that Spirit of God comes on your life, it will give you power to do mighty works of God. Today that Spirit of God is coming on your life to heal you and deliver you, to give you courage to be bold for God in this generation. In every generation, God has moved mightily, producing powerful revivals. You are going to witness a massive revival soon. Are you ready to be a transformer in this generation? Bible says where the Spirit of the Lord is, वचन कहता है कि जहाँ पर पवित्र आत्मा है there is liberty. वहाँ पर आजादी है। As you are there watching this program, और आज जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, Holy Spirit is present everywhere, पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है। and that Holy Spirit is present in your room, और वो पवित्र आत्मा आज आपके कमरे में भी है। and that Holy Spirit is going to set you free. और आज वो पवित्र आत्मा आपको पूरी तरीके से आजाद करने वाला है। We all know that Christianity started with a miracle. मसीह धर्म चमत्कार से शुरू हुआ। In the Old Testament we see the earth was without a form. और हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि जो पृथ्वी थी उसका कुछ आकार नहीं था। There was darkness everywhere. हर जगह अंधकार फैला हुआ था। The Bible says that the Holy Spirit was hovering over this earth. और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर मंडरा रहा था। That through His presence कि उसकी उपस्थिति की वजह से and by the word of God, और उसके वचन की वजह से the earth was created. पृथ्वी का निर्माण हुआ है। Even in the New Testament, और नए नियम में भी we see the Holy Spirit came upon Virgin Mary. हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा उस कुंवारी मरियम के ऊपर आया है। And because of the power of the Holy Spirit, she conceived. उस पवित्र आत्मा की सामर्थ की वजह से वे गरोधर हुई है। And because of that, mighty King of Israel, the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus was born. और उसकी वजह से इजराइल का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। That same Holy Spirit came upon John the Baptist. और वही पवित्र आत्मा यूहान के ऊपर आया है जो बपतिस्मा करने वाला था। And he began to preach the word of God. और वे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करने लगा। And there was a mighty revival. और उसकी वजह से एक अनोखे तरीके की बेदारी फैलने लगी। And as that Holy Spirit is coming over your life, और आज जब वह पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, get ready to become the hands and feet of God. तैयार हो जाइए ताकि आप परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ और पैर बन सकें। Because when the Holy Spirit comes, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है, He gives power वे सामर्थ देता है to do the mighty works of God. ताकि आप सामर्थी कार्यों को कर सकें। Let's turn to Acts chapter 1 and verse 8. इस समय हम जाएंगे प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें वचन में। But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरूनिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। Becoming a true witness of God. एक सच्चे गवाह बनना। This word tells us that Holy Spirit will come upon you and you will receive power. और ये वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपको सामर्थ प्राप्त होगा। What is the reason for this power to come in your life? आखिर ये सामर्थ आपके जीवन में क्यों आना चाहिए? This word gives the answer. ये वचन जो है हमें उसका उत्तर देता है। So that you can become my witnesses. ताकि आप उसके द्वारा उसके गवाह बन सकें। This is the desire of our Lord Jesus. और ये यीशु मसीह की इच्छा है That you will become His witnesses. कि आप उसके गवाह बन सकें। So He has called you today in this world to be His witnesses. और आज उसने आपको इस दुनिया में अपनी ओर बुलाया है ताकि आप उसके गवाह बन सकें। So you might ask me, what is the meaning of witness? तो आज आप मुझसे पूछेंगे आखिर गवाह का अर्थ क्या होता है? Witness is someone who knows what he knows by looking at the things. और एक गवाह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे जानकारी होती है कुछ देखने के बाद। He has seen certain things. उसने कुछ तो देखा है। He has experienced certain things. उसने कुछ बातों का अनुभव लिया है। And he is so convinced. और आज वो पूरी तरीके से उसको एक तरीके की खातरी, एक तरीके का भरोसा है। And he is able to ready to share that information. और वो तैयार रहता है वो जानकारी को दूसरों के साथ बांटने के लिए। A witness is a person who tells the truth about Jesus Christ. एक गवाह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो यीशु मसीह के बारे में सत्य बताता है। If you look at the Greek word for witness, और अगर हम गवाह का ग्रीक शब्द में उसका अर्थ देखें, the meaning is उसका अर्थ है to affirm that one has seen or heard
or experienced something. एक भरोसा दिखाना कि उसने कुछ देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है। The word is used as martus. और वहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे मर्टूस कहा गया है। From that we get our English word martyr. और वहां से हमको इंग्लिश का एक शब्द मिलता है मार्टर, मतलब कि एक तरीके का शहीद। And we see this word appearing almost 29 times in the New Testament. नए नियम में ये जो शब्द है शहीद, इसको 29 बार इस्तेमाल किया गया है। It is the desire of our Lord Jesus that you become his witness. और आज यीशु मसीह की इच्छा है कि हम उसके गवाह बन सकें। For that he gives you power of the Holy Spirit. और उसको बनने के लिए पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है। But becoming witness is not an easy thing. लेकिन गवाह बनना आसान बात नहीं है। Because the enemy hates you and me to become his witnesses. क्योंकि शैतान तो हमसे नफरत करता है जब हम यीशु मसीह के गवाह बन जाते हैं। The enemy will always oppose you. शैतान हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा। When the power of the Holy Spirit came upon the apostles, और जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया है, Bible says they were ready to become witnesses for Jesus. और बाइबल कहती है कि वे तैयार हो गए यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए। Apostle Peter and others boldly preached the word of God. और पतरस और बाकी के जो प्रेरित थे उन्होंने एक धाड़स से, एक साहस से परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने बांटा है। And the result was thousands of people came to salvation. और परिणाम ऐसा हुआ कि हजारों की संख्या में लोग यीशु मसीह के पास आए। But in Acts chapter 4 we see लेकिन प्रेरितों के पुस्तक के हम 4थे अध्याय में देख सकते हैं, there was a persecution. लेकिन वहां पर सताव हो रहा था। People began to oppose them. लोग उनके विरुद्ध आ रहे थे And they gave different types of warnings and threatenings to them. और लोग उनको अलग अलग तरीके की चेतावनी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। In Acts chapter 4 प्रेरितों के पुस्तक और 4था अध्याय verse 18 to 20 it says 18 से 20 वचन में ऐसा लिखा है that there was opposition to these apostles. और हम देख सकते हैं यहाँ पर अनेक तरीके का विरोध हो रहा था ये प्रेरितों को। But the apostles replied, लेकिन प्रेरितों ने उत्तर दिया है rather than listening to your opposition, we will hear the word of God. कि तुम्हारी बात सुनने से ज्यादा हम परमेश्वर की बात सुनना चाहते हैं। Rather than paying attention to your warnings and threatenings, we will obey the commandment of our God. और तुम्हारी चेतावनियों के ऊपर ध्यान लगाने से अच्छा हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएंगे। The Greek words here gives an interesting meaning. और यहाँ पर ग्रीक शब्द है और वो हमें एक अनोखे तरीके का उत्तर देता है। This word means that we literally cannot stop speaking about Jesus. यहाँ पर उसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए रोक ही नहीं सकता। The power of the Holy Spirit was so mightily in their life और पवित्र आत्मा उनके जीवन में महान तरीके से था that literally they were on fire for God. कि वे एक अग्नि से जल रहे थे यीशु मसीह के They लिए। said we cannot stop talking about Jesus Christ. और वो कहने लगे कि हम यीशु के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर सकते। This is the definition of being a witness. और ये है परिभाषा एक गवाह होने की, That the power of Holy Spirit so becomes real in your life that you cannot stop talking about Jesus. कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में इतनी बड़ी असलियत बन जाता है कि आप यीशु मसीह के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर पाते। Becoming a witness for Paul was not an easy thing. और पौलुस के लिए एक प्रेरित बनना आसान बात नहीं थी। He has to overcome lot of fears and overcome lot of opposition. और उसको अनेक ऐसे डर से जीतना पड़ा, अनेक ऐसे विरोधियों के डर से निकलना पड़ा। God wanted him to be witness in Jerusalem. और परमेश्वर की इच्छा थी कि पौलुस उसका गवाह बने यरूशलेम में। God wanted him to be witness among Jewish people. और परमेश्वर की इच्छा थी कि वे यहूदियों के बीच में गवाह बने। God wanted him to be witness among the Gentiles. और वे चाहता था कि वे उसका गवाह बने ऐसे गैर यहूदियों के, अन्य जातियों के बीच में। And the last desire of God was him to be a witness before the emperor or the Caesar. और परमेश्वर की ये भी इच्छा थी कि कैसर के सामने भी वे एक गवाह बन सके। And later in his life, उसके जीवन में Paul tells us, पौलुस कहता है, I have finished my race मैंने मेरी दौड़ खत्म कर दी है and I have kept the faith. और मैंने मेरा विश्वास रखा है। I finished everything that God desired for my life. मैंने मेरे जीवन में हर एक बातों को खत्म किया है जो भी परमेश्वर की इच्छा थी। I was very faithful becoming a witness for God. और मैं परमेश्वर के लिए एक विश्वासु तरीके से गवाह बन पाया। Everyone has to take a journey. हर एक को एक सफर में जाना जरूरी है। Paul here is also on a journey. और पौलुस भी एक सफर में है। God saved him, परमेश्वर ने उसका उद्धार कर दिया है, sanctified him, उसको पूरी तरीके से पवित्र कर दिया है and filled him with the Holy Spirit. और उसको पवित्र आत्मा से भर दिया है। And that journey was
even witnessing to his own people, the Jewish people. और एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें वे खुद के यहूदी लोगों को भी वे गवाह बन रहा था, He was a witness to the Gentiles. और वे ऐसे अन्य जातियों के सामने भी एक गवाह बन रहा था। But there were many hindrances before Paul. लेकिन पौलुस के सामने अनेक ऐसी चेतावनियां थी, रुकावटें थी, And today you might experience these hindrances in your life. और आज शायद वैसी रुकावटें आप अपने जीवन में भी अनुभव करते होंगे। But just as God helped Paul to overcome those hindrances, और जैसे परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ दिया वो सारी रुकावटों में विजयी होने के लिए, He is going to give you that same power. और आज वही सामर्थ वे आपको भी देना चाहता है। And that's why it says, you will receive the power. इसके लिए वचन में लिखा है कि तुम्हें सामर्थ प्राप्त होगा, And the word power is dunamis. और वहां पर अगर सामर्थ शब्द हम देखें तो वो शब्द है दुनामिस, And that means dynamite. That means a tremendous power. और वहां पर इसका अर्थ है एक महान तरीके का सामर्थ, एक डायनामाइट का सामर्थ। And it also means an ability. और इसका मतलब ये भी है कि वह आपको एक काबिलियत देता है। So the first hindrance that Paul experienced in his life, that is the Sanhedrin. सबसे पहली रुकावट पौलुस के जीवन में आई और वो था यहूदियों की धर्म सभा। Acts chapter 22 and verse 30. प्रेरितों के काम 22 अध्याय और 30 वचन। So here we see that Paul is facing the Sanhedrin. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस के सामने एक ऐसी यहूदियों की धर्म सभा थी, And it was comprised of 70 different people. और इस ऐसी धर्म सभा में 70 ऐसे इकट्ठा लोग थे, They were people from different religious groups, और वे अलग अलग धर्मों से लोग इकट्ठा थे, which had Pharisees and Sadducees. जिसमें फारूसी और सादुसी भी थे। And there was an high priest who was the main chief person among this Sanhedrin. और इस धर्म सभा में सबसे ऊंचा जो स्थान था वो महायाजक को था। So this Sanhedrin was a group of religious people. और ये जो धर्म सभा थी वह ऐसे धार्मिक लोगों के लिए एक संगति का समय था। So these people main job was to judge and criticize people. और इनका मुख्य काम था कि वे लोगों का न्याय करते थे और उनके ऊपर ऐसे अलग अलग आरोप लगाते थे। They used to use the word of God to back up their judgment. और वे अपना न्याय करने के लिए वचन का इस्तेमाल करते थे। These people never encouraged anyone to go forward in their life. और ये सारे लोग कभी भी किसी को उत्तेजन नहीं देते थे अपने जीवन में आगे बढ़ने के If लिए। somebody was doing the work of God, और अगर कोई परमेश्वर का काम कर रहा था they used to pull them down. वे उनको नीचे खींचते थे। So Sanhedrin to me represents the religious spirits. और ये धर्म सभा मुझे दिखाती है कि ऐसे धार्मिक ऐसी आत्माएं। Today, if you want to become a true witness for God, और अगर आज आप एक सच्चे गवाह बनना चाहते maybe हैं, you have already encountered this type of people और शायद आपके जीवन में आप ऐसे लोगों से मिले भी होंगे that they will always criticize you. जो हमेशा आपको नीचा दिखाते They हैं, will always tell you, is it the will of God that you are doing this work? और जो हमेशा आपको कहते हैं क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम इसका काम कर रहे हो। They use the word of God in a different context. और वे परमेश्वर के वचन को अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल करते They हैं, say that we don't have to follow Great Commission. और वो कहते हैं कि हमें महाआज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। This Great Commission was given to only the apostles. और ये जो महाआज्ञा थी वो तो सिर्फ प्रेरितों को दी गई थी, They say that the healings and the miracles are not for this time. जो कहते हैं कि आज के लिए चमत्कार और ये चंगाइयां आज के समय के लिए नहीं है। They have ceased when the early apostles died. और जब प्रेरित मर गए उनके साथ ये सारी बातें भी मर गई हैं। But the Bible tells us that He is same yesterday, today and forever. लेकिन बाइबल में तो वचन कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। Paul had to face Sanhedrin, पौलुस के जीवन में उसे धर्म सभा का सामना करना पड़ा, but he did not let the Sanhedrin stop him. लेकिन वो धर्म सभा उसको रोक नहीं पाई। Second thing which hindered Paul from becoming a true witness. दूसरी बात जो पौलुस को रोक रही थी एक सच्चा गवाह बनने के लिए, Paul had to go through stripes. और पौलुस को अनेक ऐसे कोड़े खाने के अनुभव से जाना पड़ा। In Corinthians chapter 11 and verse 24 दूसरे करिन्थियों का 11 अध्याय और 24 वचन says, 5 times I received from the Jews 39 stripes. और 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। Paul again and again received 39 stripes from the Jews.
और पौलुस को बार बार 39 ऐसे कोड़े खाने पड़े यहूदियों के द्वारा। And we know that even Jesus received those stripes. और हमें मालूम है कि यीशु को भी कोड़े खाने पड़े हैं। And many historians tells us और अनेक ऐसे ऐतिहासिक हमें बताते हैं that people who received those stripes, their whole body was torn apart. कि जिनको भी कोड़ों का अनुभव है उनका पूरा शरीर टूट जाता था। Many people died when they were receiving the stripes. अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती थी जिनको कोड़े खाने पड़ते थे। Here this apostle Paul, और यहाँ पर ये जो प्रेरित पौलुस है who is called to become a witness for God, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है ताकि वह उसको एक गवाह बना सके, instead of receiving appreciation, he is receiving stripes. यहाँ पर उसकी तारीफ होने से ज्यादा, उसको उत्तेजन मिलने से ज्यादा उसको कोड़े मिल रहे हैं। Today you might be thinking, और आज आप शायद सोच रहे होंगे I am becoming a witness of God. मैं तो परमेश्वर का गवाह बन रहा हूँ I am doing my best to preach the gospel और मैं मेरी पूरी मेहनत करके परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ। rather than people appreciating me, लोग तो मेरी तारीफ करनी चाहिए rather than receiving a reward. और मुझे तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, In return, I am receiving ill treatment, लेकिन उसके बदले में मेरे साथ तो बुरा बर्ताव हो रहा है। opposition and persecution. मुझे लोग मेरे विरुद्ध आ रहे हैं, मेरा सताव हो रहा है। Brothers and sisters, be encouraged. You are on the same boat. और मुझे आज आपको उत्तेजन करने दीजिए कि हम एक साथ हैं। Oh, our Lord Jesus Christ was persecuted. हमारे यीशु मसीह का भी सताव हुआ है। Why did Jews persecute Paul 5 times? आखिर यहूदियों ने पौलुस को 5 बार क्यों सताव किया? Maybe they are the 5 books of the Torah. शायद वो 5 पुस्तकें थी तोरा की They were judging him according to the word of God. और वे उसका न्याय कर रहे थे परमेश्वर के वचन के But we know अनुसार। that it was taken out of context. लेकिन हमें पता है कि ये तो संदर्भ के बाहर की बात है। Brothers and sisters, don't let any stripes or persecution or opposition hinder you from becoming a true witness. और आज कोई भी कोड़े खाने का अनुभव, कोई भी दर्द, आपके शरीर में कोई भी वेदना, कोई भी सताव आपको रोकने ना पाए एक सच्चा गवाह बनने के लिए। Number 3 thing, तीसरी बात, storm. अलग तरीके के तूफान। Paul had a storm experience in his life. और पौलुस के जीवन में अनेक ऐसे तूफान के अनुभव आए हैं। Acts chapter 27 and verse 14. प्रेरितों के काम 27 अध्याय और 14 वचन। For very long there rushed down from the land a violent wind called as Euroclio. परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरोकिलीन कहलाती है। This is not a normal storm. और ये जो था वो एक सामान्य ऐसा तूफान नहीं था। The meaning is it was a raging and a mighty storm. यहाँ पर इसका अर्थ है कि वो बहुत ही का भयानक ऐसा तूफान था। God wanted Paul to become a witness. परमेश्वर की इच्छा थी कि वे एक सच्चा गवाह बने। God wanted him to go to Rome and become a witness before the emperor. परमेश्वर की इच्छा थी कि वो रोम जाए और ऐसे सम्राट केसर के सामने वे गवाह बने। Devil put the storm in his path. नहीं, लेकिन शैतान ने उनके रास्ते में एक तूफान को भेजा है। Sisters, rise up with the power of the Holy Spirit and rebuke that storm. लेकिन आज वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उठ जाइए और उस तूफान को धमकाइए। Jesus was in that boat और यीशु उस तूफान में था and he was sleeping और वे सो रहा था because he was giving an opportunity to his apostles कि वह अपने शिष्यों को एक मौका दे रहा था that they can rise up and rebuke that storm. कि वह उठें और उस तूफान को धमकाएं। Jesus was going to tell them यीशु उनको बताने वाला था that while you are doing the ministry, कि जब तुम सेवा करने वाले हो storms will come in your life. अनेक तूफान तुम्हारे जीवन में आएंगे, But don't worry, I am in the boat लेकिन कभी भी परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हारी नाव में बैठा हूँ and you have the word of God in your mouth और आज तुम्हारे मुंह के अंदर परमेश्वर का वचन है and you have the power of the Holy Spirit inside of you. और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है। So Paul had to experience this storm. और पौलुस को ऐसे तूफान के अनुभव से जाना पड़े। Don't let any storm stop you from becoming a true witness. और आज कोई भी तूफान आपको रोकने ना पाए एक सच्चा गवाह बनने के लिए। He told his disciples, उसने अपने शिष्यों को कहा, I will be with you मैं तुम्हारे साथ रहूंगा till the end. अंत तक। You are not alone. तुम अकेले नहीं हो, You have God's presence in your life. आज तुम्हारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। So fourth thing that was a hindrance in the life of Paul. चौथी बात जो पौलुस के जीवन में एक ऐसी तरीके की रुकावट थी। But it says that Paul had to go through this experience of shipwreck. और बाइबल में लिखा है कि पौलुस को ऐसे अनुभव से जाना पड़ा जहां पर उसका जहाज टूट गया Storm and it tossed his ship. और एक भयानक तूफान आया है जिसकी वजह से उसका जहाज डूबने लगा है। And their ship was in the midst of the mighty raging storm. और वो जो जहाज था एक भयानक तूफान में फंसा हुआ था। And this ship was in the middle of the ocean. और ये जो जहाज था वे समंदर के बीच में था।
When they all saw the storm, और जब सभी लोगों ने इस तूफान को देखा, they knew that their ship is going to be broken. उनको पता था कि ये जो जहाज है ये टूटने वाला है। But Paul says that I had this experience of being shipwrecked. और पौलुस कहता है कि मैं ऐसे भी अनुभव से गया हूँ जहाँ पर मेरा जहाज टूटने वाला था। I thought I will drown in that mighty ocean. मुझे तो ऐसा लग रहा था उस विशाल ऐसे समुद्र में मैं डूब जाऊंगा। But Bible says that God protected me. लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की है। Ship is a type of a family. और यहाँ पर अगर हम जहाज देखें तो वो एक परिवार को दर्शाता है। And maybe you might have an experience in your family. और शायद आज आपको ऐसा अनुभव आपके परिवार में होगा। Maybe when you chose to become a witness for God, और शायद आज आपने जब चुना है एक गवाह बनने के लिए, the enemy attacked your family. पर शैतान ने आपके परिवार के ऊपर हमला He किया है tried to break your family. और शैतान ने आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की है Tried to break your relationships. और उसने आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश But की let है। me tell you in the name of God, लेकिन आज मैं परमेश्वर के नाम में आपको बताना चाहता the हूँ enemy has tried to break your family. कि शैतान भले ही कितना भी कोशिश कर ले आपके परिवार को तोड़ने के लिए, But God will not let anyone drown. लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी को डूबने नहीं देगा। You will reach to the shore. आप जरूर उस किनारे को पहुंचेंगे। Fifth thing that Paul encountered, पांचवी बात जो पौलुस के जीवन में एक रुकावट बन रही थी, and that was serpent. सांप। Serpent came in the life of Paul. पौलुस के जीवन में एक सांप भी आया है। Acts chapter 28 and verse 3. प्रेरितों के काम 28 अध्याय और वचन 3। When Paul was gathering those sticks, और वचन ऐसा कहता है कि जब पौलुस उन लकड़ियों के गट्ठे को इकट्ठा कर रहा था the serpent comes and fastened on his hands. कि सांप आया है और उसके हाथ को उसने लिपेट लिया है। And this serpent is a poisonous serpent. और ये जो सांप था वो बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप था He attacked the hands of Paul. और उसने पौलुस के हाथों के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। And Bible says और बाइबल कहता है that Paul took that serpent away and threw him in the fire. वचन ऐसा कहता है कि पौलुस ने उस सांप को पकड़ा है और उसको अग्नि में फेंक दिया है। So similarly, as you are doing the work of God, और आज आप जैसे परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, time and time again the enemy will tempt you and hinder you. अनेक बार शैतान आपको परीक्षाओं में डालने की कोशिश करेगा, अनेक रुकावटें लेकर आएगा। Maybe today you might be experiencing an attack from the enemy. और शायद आज अपने जीवन में आप किसी प्रकार के ऐसे हल्ले को महसूस कर रहे होंगे। Some of you who are doing the work of God, कुछ लोग जो परमेश्वर का कार्य कर रहे some हैं of you who are in ministry today, और कुछ लोग जो परमेश्वर की आज सेवा कर रहे हैं, maybe you are experiencing some kind of attack in your body today. और शायद आज अपने शरीर में किसी प्रकार के हल्ले को महसूस कर रहे होंगे। How do we get rid of this attack? आखिर हम इस हल्ले से कैसे छुटकारा पा सकते In हैं? verse 5 says Paul shook off that serpent in the fire. 5वें वचन में लिखा है कि पौलुस ने उस सांप को झटका है और आग में डाल दिया है। Serpent could not hinder Paul in becoming a true witness for God. और शैतान किसी भी तरीके से रोक नहीं पाया पौलुस को एक सच्चा गवाह बनने के लिए। Brothers and sisters, don't let any distraction or hindrance keep you away from becoming a true witness. और आज कोई भी बात आपके जीवन में रुकावट ना होने पाए एक सच्चा ऐसा गवाह बनने के लिए। The last thing which would have hindered Paul in becoming a true witness, और आखिरी बात जो पौलुस के जीवन में एक रुकावट बन सकती थी एक सच्चा गवाह बनने के लिए, and they were the sailors. और वे थे जहाज के स्वामी। They were the sailors who were taking Paul on this journey. और ये जहाज के स्वामी थे जो पौलुस को रोम की ऐसी यात्रा में लेकर जा रहे थे। And they time and time again discouraged Paul. और अलग अलग समय पे ये लोग पौलुस को निराश कर रहे थे। It says in Acts chapter 27 and verse 11. और प्रेरितों के काम के 27 अध्याय और 11 वचन में ऐसा लिखा है, And these people were never believing in Paul. They said that we will not believe in you nor respect you. परंतु सूबेदार ने पौलुस की बात में मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। Sailors are the people who give importance to what they see. और ये जो मांझी हैं और जो ये जहाज के स्वामी हैं जो वो देखते हैं उसको ज्यादा महत्व देते हैं। They are not the people who believe. वो एक ऐसे लोग नहीं होते जो विश्वास करते हैं, They give importance to their senses. और वे अपने इंद्रियों को ऐसा महत्व देते हैं। If they see something positive, they will believe. और अगर वो कुछ सकारात्मक ऐसा देखेंगे तो उस पे भरोसा If करेंगे, they see something negative, they will conclude that this is not for me. और अगर वे कुछ नकारात्मक देखेंगे तो उस पे भरोसा नहीं करेंगे। But Paul was the man who was not following his senses, but he was following the leading of the Holy Spirit. लेकिन पौलुस यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने इंद्रियों के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहा था, लेकिन वे पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा था। Sailors look at the natural sight.
और जहाज के जो स्वामी थे वो तो ऐसी ऐसी शारीरिक बातों के ऊपर ध्यान दे रहे थे। In the natural, they saw a storm, and in natural, they saw that this ship will be wrecked. और शारीरिक वास्तविक तरीके से उन्होंने देखा कि तूफान आया है, जहाज टूटने वाला है और सब लोग मर जाएंगे। Were the ones who hindered Paul in becoming a true witness. और ये जो सूबेदार थे और जो माझी थे, ये लोग एक रुकावट बन रहे थे पौलुस के जीवन में। But all these things did not hinder Paul in becoming a true witness. लेकिन कोई भी बात उसको रोक नहीं पाई एक सच्चा गवाह बनने के लिए। Today, the words are hindering you in becoming a true witness. और आज एक सच्चा गवाह बनने के लिए शायद अनेक अड़खनों से, अनेक रुकावटों से आप जा रहे हैं। But you can do all things through Christ who strengthens you. लेकिन उस यीशु मसीह के द्वारा जो आपको सामर्थ देता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। I pray that the power of the Holy Spirit gives you an anointing in your life. और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे वो सारी बातें करने के लिए। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में I pray for everyone that is watching this telecast. हर एक व्यक्ति जो इस टेलीकास्ट को देख रहा है, हर एक को आशीर्वादित कीजिए। You touch them today, O Lord. आज उनको स्पर्श कीजिए। And many are effectively becoming a true witness. और अनेक तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अनेक लोग आपके गवाह बन रहे हैं। But there are some hindrances in their life. लेकिन अनेक तरीके की उनके जीवन में आज चुनौतियां रहेंगी। There are hindrances that are pulling them down from becoming that true witness. अनेक ऐसी रुकावटें हैं जो उनको रोक रही हैं एक सच्चा गवाह बनने के लिए। Right now, if somebody is watching this telecast, और आज अगर कोई इस टेलीकास्ट को देख रहा है they are in a storm in their life, और अगर वे किसी तूफान के अनुभव में हैं and everyone around them thinks that storm will destroy them. और अगर लोग उनको देखकर कह रहे हैं कि वो तूफान उनका नाश कर देगा, Holy Spirit, you give them such a power लेकिन पवित्र आत्मा आज आपके सामर्थ को उनको दे दीजिए that right in the midst of that storm, कि उस तूफान के बीच में they may rise up and calm that storm in the name of Jesus. कि वे उठकर उस तूफान को धमका सकें। If anybody is experiencing stripes in their life, और अगर आज कोई कोड़े के अनुभवों से जा रहा है, physical problems, शारीरिक तरीके से, sicknesses in their life, बीमारियों से, but by your stripes, लेकिन आपके कोड़े खाने से they are healed completely. आज वो चंगे हो गए हैं। God, they are overcomers. आज वो जीतने वाले लोग हो गए Bless हैं। every one of them, O Lord. हर एक को आशीर्वादित कीजिए। Bless each and every one that is looking at this telecast. हर एक जो देख रहा है उसे आशीर्वादित कीजिए। Anyone is looking for a good job, अगर कोई आज एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है, bless them with a wonderful job. उनको एक अच्छी नौकरी मिलने पाए। Somebody is looking for right life partner, अगर कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहा है, bless them with a right life partner. उनको एक सही तरीके के जीवन साथी के साथ आशीर्वादित कीजिए। If anybody is going through financial crisis, और अगर कोई आर्थिक समस्याओं से जा रहा है, Lord, you are Jehovah Jireh. Provide their needs. परमेश्वर आप यहोवा यीरे हैं, उनकी सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। Bless every one of them. हर एक को आशीर्वादित You be कीजिए। glorified in their life. आपकी महिमा होने पाए उनके जीवन से। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमेन। We will be happy to pray for you. और हमको खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में। If you have any prayer request, you can send that prayer request on the given email. और अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विनंती है, आपके सामने जो ईमेल है आप उस पर भेज सकते हैं। Our prayer warriors are ready to pray for you. और हमारे जो प्रार्थना के योद्धा हैं उनको बहुत ही खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने के And I लिए। believe this 2020 will be a year of going forward. और मुझे पूरा विश्वास है ये जो 2020 है वो आपके लिए आगे बढ़ने का साल होगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shalom. शालोम।